So if the Air Force is coming, those members are belongs to NDRF. So only the person who is driving, they will be different. The rest, it will be the killer. So in that way, they are trained enough for different kind of. Every training, if I say the cyclone training is different, disaster training, flood training is different, nuclear disaster, if it is their training is different, every kind of disaster training is different. Killer? So, यदि ट्रेनिंग डिफरेंट नहीं होगा तो आप फास्ट लाइफ को सेव नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? यदि यहाँ पर आग लग जाए तो शायद आप लोगों को बताया होगा, तो पीपल विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ द बर्निंग, पीपल विल डाई ड्यू टू द कार्बन मोनोऑक्साइड. यस और नॉट? इफ इट विल बी देयर, सो कभी भी फ्यूल जो भी यहाँ पे जलेगा, यदि वो कंप्लीट कंबजन नहीं होगा, इफ इट इज नॉट कंप्लीट कंबजन, देन इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल कन्वर्ट इनटू, and we will inhale carbon monoxide, and it will go in our body and it will start reacting with the oxygen available in our body. Understood it? And reduce the oxygen level, reduce. और हमारा जैसे ही ऑक्सीजन रिड्यूस होगा and the blood started clotting and we will die, and that is known as asphyxiation. क्लियर? सो द जनरली हर एक के लिए ट्रेनिंग अलग होता है कि वी शुड बी फास्ट गोइंग इनसाइड, एंड व्हाट आई सेड दैट रिमूविंग द पीपल फ्रॉम देयर. तो हर एक का ये चीज़ें आप लोग इन्वायरमेंट की क्लासेस में विल हैव टू स्टडी दिस थिंग. और कोई भी सब्जेक्ट आज के डेट में यूपीएससी विल गो एनी क्वेश्चन, आप पेपर 1 में देखोगे लगेगा कि द क्वेश्चन इज लुकिंग लाइक डिजास्टर. ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया लुकिंग लाइक डिजास्टर, लुकिंग लाइक इकोनॉमी. So topics are interrelated. Understood? पेपर 3 में चले जाओगे, डिजास्टर लगेगा कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा. बट एनी सब्जेक्ट, अब एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं रहेगा, इट इज एन अ रिलेटेड सब्जेक्ट. सो लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, लॉ ऑफ, whenever you are studying something, there should, one thing also you should be remember to clear this examination, law of, and that you have to develop, law of connectivity. Understood? So next one we are going to see tsunami. अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा. I did not say that. I'll tell you. You have to tell me why it is in the Kerala. Yes? नहीं पता. क्या मिला? अब अभी ये भी बताऊंगा, सुनामी केरला पे क्यों आया था इन 2004. व्हाई डू द सुनामी इज अफेक्टिंग केरला? वो आना चाहिए था ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. व्हाई इट हैज़ अफेक्टेड केरला? हाँ, तो मुझसे तब पूछ लेना जब मैं सुनामी इंडिया में बताता रहूँगा. एक वर्ड है, जब तक आप ढूंढ सकते हो उसकी मीनिंग, दैट इज़ इन योर हैंड. देयर इज़ समथिंग इन योर हैंड, स्मार्टफोन. And one word is there, diffraction. Diffraction. अभी मैं पूछूंगा तो I know that you can't tell. And बोलोगे सर क्या क्या साइंस की चीज़ें पूछ लेते हो आप. So I am not asking any hard thing. I am just asking the thing which is you have studied in the class 10th, 9th in the light chapter. Understood? तो वो वहाँ का एक वर्ड है, कंसेप्ट है डिफ्रैक्शन. पहले वो समझ लीजिए. I'll tell you later on. क्लियर? डिफ्रैक्शन ढूंढ सकते हो बाय द टाइम, आपको मना नहीं किया. यू हैव ए स्मार्टफोन, यू कैन चेक इट आउट. व्हाट इज द डिफ्रैक्शन? व्हाट इज द डिफ्रैक्शन? चेक इट आउट. सभी को मैंने बोला, इट्स नॉट, आपने ऐसे ही बताया है. हाँ हाँ, तो अदर्स कैन, व्हाट आई सेड दैट अदर वॉच आउट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्रैक्शन? हाँ, दैट इज रिफ्रैक्शन.
refraction. That is known as refraction. When the light moves or energy moves from one medium to another, it is refraction. When the energy moves in the same medium, return back in the same medium, it is known as reflection, refraction, और एक हमने बोला diffraction. That is dispersion. Okay, dispersion. It is bending of light from the corner of the object. Bending of from the corner of object. Getting it? नहीं समझ में आया? आया क्या होता है? जैसे मान लो कि आप लोग कभी you have seen that there are the two rooms. One room is in the light. Yes or not? And second room you do not have any side. You did not switch on, so there is no light. But even then you can work inside the second room. There is a door is there, and through the door light comes and you bend towards like this, and it goes. You can go toward the. I said that in your Almira you can find out something. Yes or not? कैसे light इधर से आ गया? Why do the light is able to come? It is when it is coming, then it bends from the corner. Bends from the corner. दिखता है ना? And that phenomena is known as diffraction. इसी तरीके से जब कभी भी साइक्लोन यहाँ से देखोगे ना, जैसे ऐसा रहेगा, तो कभी साइक्लोन जब आता है ना, तो इसके कॉर्नर से मुड़कर और ऐसे जाकर घूमकर और मारता है. तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि कॉर्नर से आपको क्या होगा? बेंडिंग फ्रॉम द कॉर्नर, बेंडिंग फ्रॉम द एनर्जी. लाइट इज व्हाट? एनर्जी ना. चलिए मैं आऊँगा जब सुनामी बताते हैं समय. आई विल कम ऑन टू इट. सो सुनामी, व्हाट इज सुनामी? आपको कल बता चुका था कि आई विल टेक सुनामी क्लास ऑन टुडे. एंड सुनामी कल ख़त्म होते ही लैंडस्लाइड विल स्टार्ट, एंड द लैंडस्लाइड के बाद फ्लड विल स्टार्ट. Understood? Because several factors is responsible for what I said, that landslide is also causing flood. So one flood it is in the cyclone you have seen. Today tsunami will cause flood, that we'll also see. And then we'll also see that landslide also causes flood. So when I'll come into the flood, some areas you are understanding that yes, the flood can be not due to the heavy rainfall, and one we have seen then flash flood. Yes? Yes or not? अभी जो उत्तराखंड में हुआ है, व्हाट इज दिस? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड. क्लियर? सो सुनामी, कैन यू टेल मी एनीबडी व्हाट इज सुनामी? Anybody else? It is known as harbor wave. Okay. Tsunami are oceanic waves. It is caused by earthquakes and also landslide generating surface. Good. Anybody else will contribute in this definition? आप ये मान के चलो कि यहाँ पे कोई इंटेलिजेंट नहीं है. Nobody is going to get the selection. And do not think of the others. कि what the others has said. Yesterday I have said that कि जो स्टूडेंट हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, और इज्जत बनाने के चक्कर में आप ये मत सोचना कि यू शुड नॉट आस्क एंड यू शुड नॉट से. horizontal displacement of sea water. Good. Anybody else? Transverse sea seismic wave. Wow, great. He is talking about transverse sea seismic wave. जब earthquake पढ़ोगे, it is known as I said that in the form of, there are the two body waves. It is known as primary wave or S waves, and S wave is in a transverse sea seismic wave. So it is not affecting in the anywhere in the tsunami. So somewhere he has tried something else, but it is not there. Okay, anybody else? मैं ही बोलूँ फिर? चलिए, definition थोड़ी देर के बाद बोलूँगा. First we have to understand tsunami. Clear?
फर्स्ट एक मैप बनाइएगा आप लोग और उस मैप को बहुत अच्छे से ड्रॉ करिएगा. फर्स्ट आई ड्रॉ द मैप इन अ मच बेटर वे. अंडरस्टूड इट? क्लियर? तो पहले ये समझ में आ रहा होगा आपको. दिस इज अंडमान. इज इट क्लियर? This is your Indo-Australian plate. ड्रॉ करें. आज आपको अंडमान निकोबार फॉर्मेशन एंड एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ इंडोनेशियन आर्चिपेलागो. क्लियर? सबने ड्रॉ कर लिया? अच्छा ड्रॉ करना. यू शुड ट्राई टू ड्रॉ बेटर फिगर. Everyone is drawn. It is your Indian continental plate. It is an Australian continental plate. Yes or not? And this is Indo-Australian oceanic plate. ये क्या है? Ocean का part है. It is there ocean water. So below this, which plate will be there? Which plate will be there? Oceanic. And it is an Indo-Australian continental. It is an Indo-Australian continental. Yes. And they are moving northward. Last class में मैंने समझाया भी था. जब हिमालय में they are moving. Clear? Any problem? And perhaps you know that there is a China, Russia, and all. Yes. So this is your, and here it is Europe also. So it is known as which one? यूरेशियन कॉन्टिनेंटल. लेकिन ये जो पार्ट है यूरेशियन ओशियानिक, दिस वन इज यूरेशियन ओशियानिक प्लेट. गॉट इट?
Write down. Cause of tsunami. आप लोग डेफिनेशन के लिए 3-4 लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद कॉज ऑफ सुनामी लिखेंगे. यू हैव टू लीव द 4 लाइन्स फॉर द डेफिनेशन. Cause of tsunami. First one I said plate tectonic. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? प्लेट, प्लेट का मतलब होता है प्लेट, और जब when the plates are moving, so one plate is going below. Yes. एक बात ध्यान से ऐसे ही थोड़ा सा, सेल आई रिमूव दिस. ये क्लियर है ना आपको? यहाँ सपोज करो ये प्लेट है, जो बच्चे ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो यहाँ से ये मैग्मा चल रहा है. कन्वेक्शनल करंट ऑफ मैग्मा एक दिन बताया था आप लोगों को. एवरीवन नोज अर्थक्वेक वाले दिन. सो ये प्लेट टूटा, यहाँ पर आ गया, ये प्लेट टूटकर ये दूर चला गया और बीच वाला पार्ट टूटकर नीचे आ गया. कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना. सो इट विल बी, इट हैज़ बीन ब्रोकन. फिर अगेन आई सेड दैट लिसन मी. उसके बाद ये जो ये बीच वाला पोर्शन था, दिस मिडिल पोर्शन, फर्दर कन्वेक्शनल करंट ऑफ मैग्मा हैज़ ब्रोकन दिस. एंड क्या हुआ ध्यान से देखेंगे, इट हैज़ गॉन लाइक दिस. एंड दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन यहाँ पर मैं दिखा रहा था, ये बीच से टूट गया. हियर इट इज, एंड वन लेफ्ट here like this. It is clear? Break. So this convectional current of magma, ये basaltic magma इसमें गैप में आके भर गया. So क्या बन गया? New oceanic floor. Understood? And again convectional current of magma. ये slowly and slowly यहाँ पर क्या हो रहा है? New ocean floor बन रहा है. New ocean फ्लोर. याद है ना आपको, एक दिन बताया था डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस. अरे फ्यू डेज बैक, एंड ऑल ऑफ यू आर देयर. तो डाइवर्जेंस हो रहा था ना कन्वेक्शनल करंट ऑफ मैग्मा से. तो जो डाइवर्जेंस हो रहा था, दैट टाइम एट दिस पॉइंट देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशियानिक फ्लोर. यस और नॉट? एंड कैन आई से इट इज इन अ कंस्ट्रक्शन. और जब कभी कभी जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से कन्वर्ज हो रहा है, तो ओल्ड ओशियानिक फ्लोर यूज टू डिस्ट्रॉय. सपोज करो ये कॉन्टिनेंट है और ये ओशियन है. याद है आप लोगों को बनाया था हिमालयन फॉर्मेशन एंड ट्रांस हिमालयस. सो वेयर इट इज गोइंग डाउन, देन ओल्ड ओशियन फ्लोर एट द, दिस इज व्हाट? convergence, the old ocean floor is destroying. So construction at divergence, construction at and destruction at convergence. तो ये कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन इज नोन एज टेक्टोनिक. तो जब प्लेट मूव करता है तो समवेयर देयर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लेट एंड समवेयर देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड प्लेट. यस और नॉट? एंड दैट इज नोन एज अ प्लेट टेक्टोनिक. एक सिंपल परिभाषा में देखेंगे तो ये है आपको प्लेट टेक्टोनिक. क्लियर? और अभी हमने फर्स्ट कॉज क्या बोला? प्लेट टेक्टोनिक. अब यही मुझे समझाना है. आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हो ना? मुझे लग नहीं रहा है. Perhaps some of you have studied geography and some of you have not. Yeah? And मैं आज बताऊंगा तो those who have studied and those who have not studied दोनों के लिए नया ही रहेगा. Am I right? Yes or not? तो मेरी टीचिंग को रिस्पेक्ट किया करो. और इस क्या नाम है, हु इज आउटसाइड? समबडी इज आउटसाइड. वो जो यहाँ
ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई इंग्लिश एंड देयर फॉर सर क्या आप उल्टा सीधा बोलते रहते हो, आई कांट अंडरस्टैंड योर इंग्लिश। हाँ, सो इट विल बी बेटर टू लिसन द सॉन्ग। तो इसलिए पीछे बैठ के बंद करो थोड़ा।